Sir, can girls join merchant navy? What is minimum height, weight, and BMI to join GP rating or DNS? Pro in plus to which subjects to take as a officer, computer science or biomaths? Tip for a deck cadet joining her first ship. DNS is greater than ESC. What do you think? Are tattoos allowed? Suppose we are on a rank of third officer and our eyesight is depleting day by day. 11th class में है. IMT एग्जाम के लिए क्लास लगाना पड़ेगा क्या? So can I do merchant navy studying PCB? Is there proper network and internet on sea? Chips पर जब sign off होता है तो होम रिटर्न टिकट्स के पैसे देती या कुछ देना पड़ता है? Do you get your payment only when you work on ship or when you are at home you get your payments? Welcome to my merchant navy question and answer channel. Here I guide you for merchant navy with the right information because currently there are many false and fake information going on, and I am also against of those institutes who ask you to fill Google form just in the name of guidance. We select questions related to merchant navy, IMUCD and sponsorship from my YouTube community, Reddit and direct messages what we get. Why should you even listen to me? Because we have the results you are looking for. IME 2026. We have under 1K, 2K, 3K, 4K, 5K rank holders. Talking about sponsorship, August 2026, we have from Fleet Management, MERS, Anglo-Ipsen, Tolani and other top shipping companies sponsored cadets. If you have any questions, you can ask in the comments below and I'll take it and give answer tomorrow. Sir, can girls join merchant navy? What is minimum height, weight and BMI to join GP rating or DNS? Please reply. Okay. EG shipping, medical standards for girls. For female candidates, minimum height is 145 centimeter. Other than that, your BMI should be normal. And obviously, you should not have color blindness. Your vision should be 6 by 6 in your better eye and 6 by 9 in your other eye. Okay, if it is both 6 by 6, it is good. But if one eye is above 6 by 9, you need to take care of that. Maybe you need to do LASIK and all. But one eye of 6 by 6 and other eye of 6 by 9 will work. Yeah, 145 centimeter for girls. BMI normal, no color blindness, 6 by 6 in better eye and 6 by 9 in other eye. Pro in plus to which subjects to take as a officer, computer science or biomaths. In plus 2 you need to get PCM at least 60% to be eligible to give IMUCD, but it should be at least 75% PCM to be eligible for company sponsorship for all of the companies. And English, it should be above 50% in your class 11, class 10 or class 12. Again, you should at least get here 70% above, sorry, here you should also get 80% above, because some of the companies criteria are that cadets should have 12th English 80% and more, then only they will be eligible. Okay, so you need to take care of this offer. Tip for a deck cadet joining her first ship. Okay, many things actually you need to take care of. सबसे पहले keep your ego down. Okay, ऑन बोर्ड शिप आपसे जूनियर रैंक के होंगे ऑब्वियसली, बट यू आर टेक कैडेट, आपसे नीचे होगा ओएस, ठीक है, ट्रेनी ओएस, ये सब होंगे. बट वहाँ पे भी क्या होता है, रैंक के मामले में दे आर ऑब्वियसली लोअर देन यू ऑल्सो, बट एक्सपीरियंस के मामले में एवरी वन इज ग्रेटर देन यू. तो आपको लगेगा कि ये तो ओएस, ये तो ट्रेनी ओएस, वाई इज ही गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मी. आपको ये सब चीज़ें ईगो में नहीं लेनी. जो भी वहाँ जहाज़ में हो रहा है, डोंट टेक इट इन योर ईगो. ओके, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, बट नेवर आर्ग्यू. ठीक है, वहाँ बहुत कम लोग हैं वहाँ पे. यू आर न्यू टू द लाइफ एट सी, यू डोंट नो एनीथिंग करेक्टली.
तो मेक श्योर दैट योर ईगो इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। सेकेंड थिंग, डोंट लाई, बी ऑनेस्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि आप कुछ गलत कर दोगे एंड यू विल फील कि यार अब मैं बोलूँगा तो पक्का चीफ सर मुझे गाली करेगा, या बोसन मुझे गाली करेगा, या कैप्टन मुझे तो सुनाएगा। बट अगर आप सच बोल दोगे, शायद हाँ उस टाइम आपको वो डांटेंगे, उस टाइम कुछ गाली करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ों, रिस्क से पूरा जहाज बच सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी सिचुएशन में कि आप कुछ गलत कर दो, तो मेक श्योर कि आप वो एग्जैक्ट चीज़ जाके चीफ ऑफिसर को बता रहे हैं, चाहे वो चीफ ऑफिसर कैसा भी है, ठीक है। डोंट लाई, डोंट लाई, क्योंकि वो एक मिस्टेक फिर क्या है, डोमिनो इफेक्ट की वजह से वो छोटे 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 करके फिर वो बहुत बड़ा है, कुछ इंसिडेंट बन सकता है। तो मेक श्योर कि आप कभी झूठ मत बोलो। एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट एवरी वन ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। रिस्पेक्ट एवरी वन, चीफ कुक हो गया, आपका स्टूवर्ड हो गया, आप उनको कोई ऐसे नज़रिए से मत देखो कि उनकी रैंक की कुछ कुक है तो ये स्टूवर्ड है, डोंट सी लाइक दैट, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे हुए हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो डोंट ऐसा मत समझो, ठीक है। यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन वहाँ पे, डोंट जज देम बाय द रैंक्स, एंड दैट्स ऑल। और बाकी चीज़ तो आप सीख ही जाओगे, यार यू आर गोइंग फॉर द लर्निंग, तो आप वो सारी चीज़ें सीख ही जाओ। DNS is greater than GSC. What do you think? Already clarified for DNS and GSC. DNS there is no degree at first. अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको पहले 18 मंथ्स का C10 कंप्लीट करना होगा, जिसको एक्चुअल टाइम में अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको 3 से 4 साल लगेगा तो कंप्लीट कर 18 मंथ्स ऑफ कैडेटशिप। उसके बाद आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद आपको सेकंड मेट का एग्ज़ाम भी निकालना होगा, रिटर्न एंड ओरल सारे निकालने होंगे। उसके बाद ही आप BSc की डिग्री को ले सकते हो। तो ये अगर सारा कुछ मिला ले तो अराउंड 5 से 6 साल का टाइम लगेगा अगर आपको डिग्री चाहिए आफ्टर योर DNS, ठीक है। एंड अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अभी आपके आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आपको फाइनेंशियली हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, तो हाँ आप DNS जा सकते हो। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो डिग्री चाहता है, जो शायद अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में तैयारी करना चाहता है, या कुछ है बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यार कौन मुझे करना था, तो आप BSc कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 साल के बाद डायरेक्टली आपको जो है BSc की डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार मुझे शायद मर्चेंट नेवी मेरे लिए आगे जाने वाले टाइम में सही नहीं होगा, तो आप BSc वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी, ठीक है, अगर आपके कंधों में कुछ नहीं है कि भाई आपके पापा आज स्टेबल है, आपकी फाइनेंशियबिलिटी अच्छी है, तो भी आप BSc को चूज़ कर सकते हो। आर टैटूज अलाउड? यस, इट इज़ अलाउड, बट आई डोंट रिकमेंड। ये क्यों नहीं करता हूँ, मेरा पर्सनल रीज़न नहीं है इसमें। यू नीड टू थिंक कि भाई आप जो कंपनीज में जाने वाले हो, वहाँ पे इंडियन कैप्टन सीओ से ही आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। एंड इट शुड नॉट, आई शुड नॉट टेल, बट इंडियन कैप्टन सीओ ऑफिसर की मेंटेलिटी अभी भी थोड़ी बहुत बैकवर्ड रहती है। वो ये चीज़ों को भी लाइक इतना महत्व देते हैं कि टैटू है, ये है, वो है, ठीक है। तो बेटर अभी तक आपके पास नहीं है तो मत बनाओ। अगर आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद जब आप एक बार जहाज में चले जाओगे, उसके बाद यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, वहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। बट फॉर योर इंटरव्यू टाइम या स्पॉन्सरशिप लेने के टाइम में अगर आपके पास नहीं है अभी टैटू, को मेक श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग इट फॉर कुछ देर के लिए, डिले कर दो उस प्लान को। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर कुछ अच्छा सा रीज़न बना के रखना, या कुछ भी आप जो है जनरली जो भी आपका माइंड में था उस टाइम, वो जिस चीज़ से आपने पढ़ाया है वो चीज़ आप वहाँ पे बता देना, ठीक है। ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भाई टैटूज नहीं हुआ तो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी, यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। Sir, I had a question that suppose we are on a rank of third officer and our
eyesight is depleting day by day. So are we medically eligible or the next ship if we wear specs for that? So you need to know कि every 2 years it is compulsory to do medical. ठीक है, तो हर 2 साल में हर एक सी फेरर को जो है अपना मेडिकल्स करवाना होता है डी शिपिंग के अप्रूव डॉक्टर्स से. ठीक है, वो कंपनी से आपका करवा लेती है बाद में, या आपको कंपनी बोलेगी आप करवा लो तो रिम्बर्समेंट हो सकती है. तो वो सब चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ती है. बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती है कि हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको मेडिकल करवाना पड़ सकता है. ठीक है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपका जहाज़ कहीं और कोई ऐसी कंट्रीज आ रहा हो तो जहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट, तो उसके लिए भी आपको करवाना पड़ सकता है. तो अगर आपका कोई भी मेडिकल चीज़ डे बाय डे डिप्लेटिंग हो रहा है, जैसे आईसाइट हो रहा है, तो मेक श्योर यू आर टेकिंग सम एक्शन फॉर दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आप लेसिंग वगैरह करवा सकते हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, व्हाट शुड आई डू. तो वो सब चीज़ें आप करते हुए चले जाना. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो ज्वाइनिंग के टाइम में यू आर वेरी ऑल राइट, आपका मेडिकल इनकम परफेक्ट है, बट अगले साल 2-3 साल के बाद आपका मेडिकल फिर से वो बिगड़ गया तो भाई कंपनी आपको नहीं लेंगी. यू नीड टू मेक योर मेडिकल जैसा ज्वाइनिंग के टाइम में था वैसा ही आपका जो है एवरी ईयर एवरी कॉन्ट्रैक्ट से पहले होना चाहिए. ठीक है, बहुत ही कम कंपनीज है जो हर कॉन्ट्रैक्ट से पहले करवाती हैं, बट रूल ये है कि हर 2 साल में आपको करवाना ही होगा. तो भाई यहाँ पे यू नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ. सर मेरे भाई ने कंप्यूटर साइंस दिया है, वो अभी 11th क्लास में है. IMT एग्ज़ाम के लिए क्लास लगाना पड़ेगा क्या? क्लास नहीं लगाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी. ठीक है, नॉट नेसेसरी. बेटर आस्क हिम टू प्रैक्टिस मॉक्स. ठीक है, आपको भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई भी रीज़न है, आप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई आपको लगाना ही पड़ेगा कोचिंग, वो उसके अलावा नहीं होगा. यू कैन डू इट, बट मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक्स. ठीक है, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक्स लगाओगे तो ही सेल्फ स्टडी करने का कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज नो. ठीक है, टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक्स, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन जॉइन और मॉक पास. डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी लिंक दे दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक आउट. सो कैन आई डू मर्चेंट नेवी स्टडिंग PCB? नो यार, यू कांट ड्राइंग. आपको मैथ को चाहिए, PCM चाहिए, PCB में नहीं हो पाएगा. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे रिपीट फ्रॉम PCM. ठीक है, आप कर सकते हो. अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना ही है तो आप PCM से फिर आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर NIOS से करना पड़ेगा. बट आपको मैथ का चाहिए ही चाहिए. इज द प्रॉपर नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑन सी? देखो, मैं अपना स्टोरी बताऊँ तो आई यूज टू गेट 150 MB पर वीक. ठीक है, ऑन माई फर्स्ट शिप. सेकेंड शिप में ये बढ़ के हो गया था हमारे अराउंड आई थिंक 750 MB पर वीक, क्योंकि उस टाइम फुजायरा में हमने कुछ एक लगाया था इंटरनेट का, सी सैट के समथिंग इट वॉज दैट. उस टाइम तक स्टारलिंक नहीं आया था. ठीक है, बट नाउ यू आर गेटिंग अनलिमिटेड, या फिर कुछ 5 GB समथिंग फॉर पर डे. लाइक दिस यू आर गेटिंग नाउ डेज इन मेजॉरिटी ऑफ द शिप. एंग्लो ईस्टर्न में तो ऑलमोस्ट सारे ही जहाज में स्टारलिंक लग चुका है, तो अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं. ऑब्वियसली बहुत सारी अगर ऐसे कंपनी में चले जाते हो जो ये सब अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो तब आपको शायद ये चीज़ करना पड़ेगा. और ग्रेट ईस्टर्न या 7 आइलैंड में जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, 21, 22, उस 3 साल के का बात कर रहा हूँ. तो उस टाइम 7 आइलैंड में तो ये भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था. हमारी कंपनी एटलीस्ट इसको फ्री में प्रोवाइड कर रही थी. 7 आइलैंड में ये भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. यू नीड टू बाई डाटा. ठीक है, आपको डाटा बाई करना पड़ता है, बहुत महंगा रहता है क्योंकि वो फिर सैटेलाइट से आ रहा होता है, तो बहुत महंगा डाटा आपको खरीदना पड़ता है. एंड एज अ कैडेट यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड इट. बट अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अभी स्टारलिंक आ चुका है. तो आई थिंक जितने भी कंपनीज जो है अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह देती हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनी टॉप शिपिंग कंपनीज, तो दे आर अडोप्टिंग टू स्टारलिंक्स. सो शिप्स पर जब साइन अप होता है तो
होम रिटर्न टिकट्स के पैसे देती या कुछ देना पड़ता है? एवरीथिंग, एवरीथिंग कंपनी विल टेक केयर। खाना, आपका पीना, रहना, होटल, आपका घर से आप एयरपोर्ट तक आपका कैब जाना, एयरपोर्ट से आपके होटल तक का, ज्वाइनिंग तक का, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद आपके घर पहुंचने तक का सारा खर्चा जो है कंपनी उठाती है। जहाज़ में भी आपका खाने से लेकर आपके रहने का एवरीथिंग कंपनी का जहाज में ही सारा होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग कंपनी विल टेक केयर ऑफ। हाँ, उसके अलावा मान लो एक बॉन्ड स्टोर होता है, जैसे कैंटीन्स होती है ना, डिफेंस फोर्सेस की कैंटीन्स होती है, वैसे उसी तरह हर शिप में बॉन्ड स्टोर होते हैं। उस बॉन्ड स्टोर में सामान अगर आपको खरीदना है तो तब आपको पैसा देना होगा। एंड ऑल्सो अगर आप शोर लीव में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद के पैसे खर्चे करने होंगे। अगर मान लो आप कोई और कंट्री से ज्वाइन कर रहे हो, जैसे फुजायरा से मेरी ज्वाइनिंग, तो फुजायरा में जो मैंने खर्चे किए हैं वो मेरे खुद के खर्चे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद की टेक केयर करनी होंगी। अदरवाइज उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ कंपनी टेक केयर करती है। बहुत सारी चीज़ें, हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी बोले कि आप अभी पे करो, बट उसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है। जैसे कि मेरे घर से मेरे वो कैब एयरपोर्ट तक का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो वो चीज़ मैंने क्या किया, फिर वो उसका बिल वगैरह पहुंचाया तो मुझे रीइंबर्समेंट आ गया, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारी कंपनीज तो क्या करती है, जो कोर्सेज आप करते हो ना उसके भी पैसे देती है, तो बट उसके सारे रीइंबर्समेंट के प्रोसेस होते हैं विच यू नीड टू नो आपकी कंपनी के, ठीक है। डू यू गेट योर पेमेंट ओनली व्हेन यू वर्क ऑन शिप और व्हेन यू आर एट होम यू गेट योर पेमेंट? प्लीज क्लियर इट टू मी। आपका सी देर आर 99% कंपनीज who pay you only when you are on board ship, ठीक है। तो आप जब शिप में हो, जिस दिन आप अपने घर से निकल गए ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपने जहाज से कदम बाहर रख दिया उस दिन से आपका पेमेंट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है 99% कंपनीज में। बट कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे बनवाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है एकदम आपका सिस्टमाइज चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आप कितने महीने घर पे रहोगे, आपकी किस चीज़ से शायद आपको जो है ज्वाइनिंग आपकी लेट हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका कॉन्ट्रैक्ट शायद मान लो 6-7 महीने का है, बट कुछ कंपनी जिनका सिस्टमाइज रहता है कि भाई 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो बनवा लेती है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम आपको अपना बिताना पड़ता है, वो एकदम स्पेसिफिक रहता है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम घर पे बिताना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों टाइम आपको पैसा मिलता है, ठीक है। बट बहुत चुनिंदा कंपनीज हैं, एट कैडेटशिप के टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी मैंने सुना नहीं है। बट आप जब थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर बन जाते हो, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर बन जाते हो, तब ये सारे प्रोसेस आपके हो सकते हैं। बट बहुत लिमिटेड कंपनीज ऐसे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फॉल हियर ओनली कि भाई आप घर से निकले, आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया है, जहाज से उतरे, आपका पेमेंट स्टॉप, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल टेक इट एंड गिव आंसर टुमारो।